ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ لداخ میں کانپی زمین، ریکٹر پیمانے پر 4.3 درج کی گئی زلزلے کی شدت۔ جموں کشمیر میں حجاب یا عبایا پہننے پر کوئی پابندی نہیں، جموں کشمیر ایجوکیشن محکمے کے پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار کا بیان۔ سوال بی جے پی کا نہیں بلکہ ملک کا ہے، فاروق عبداللہ نے علاقائی پارٹیوں کے درمیان اتحاد پر دیا زور۔ مرکز کے زیر انتظام ریاست لداخ میں جمعرات کی رات 4.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی NCS کے مطابق جمعرات کی رات زلزلے کے جھٹکے رات 10:22 پر محسوس کیے گئے۔ ابھی تک کسی طرح کے کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ زلزلے کی گہرائی زمین سے 10 کلومیٹر نیچے تھی۔ زلزلے کے آنے کی اہم وجہ زمین کے اندر پلیٹوں کا ٹکرانا بتایا جا رہا ہے۔ 7 پلیٹس ہوتی ہیں جو لگاتار گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹس کسی جگہ پر آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو وہاں فالٹ لائن زون بن جاتا ہے اور سطح کے کونے مڑ جاتے ہیں۔ سطح کے کونے مڑنے کی وجہ سے وہاں دباؤ بنتا ہے اور پلیٹس ٹوٹنے لگتی ہیں۔ ان پلیٹس کے ٹوٹنے سے اندر کی انرجی باہر آنے کا راستہ کھوجتی ہے، جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور ہم اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر 2 سے کم شدت والے زلزلے کو مائکرو زمرے میں رکھا جاتا ہے اور یہ زلزلہ محسوس نہیں کیا جاتا۔ جموں کشمیر ایجوکیشن محکمے کے پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار نے واضح کیا ہے کہ یونین ٹیریٹری میں حجاب یا عبایا پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وشو بھارتی اسکول کے پرنسپل نے اس حوالے سے کوئی آرڈر نہیں نکالا۔ آلوک کمار کا کہنا تھا کہ وردی کے اوپر طالبات جو بھی پہنے انہیں اس کی پوری اجازت ہے۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے نیوز پورٹل کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں حجاب یا عبایا پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ وشو بھارتی اسکول میں عبایا پر پابندی عائد کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آلوک کمار نے بتایا کہ اس حوالے سے کوئی آرڈر نہیں نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی یہ معاملہ سامنے آیا ہم نے اس کا نوٹس لیا اور فوری طور پر پرنسپل اور اسکول انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کی۔ ان کے مطابق اسکول پرنسپل نے حجاب یا عبایا پر کوئی پابندی عائد نہیں کی اور نہ ہی اسکول انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی آرڈر نکالا گیا ہے۔ موصوف پرنسپل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ حجاب یا عبایا کے نیچے اسکول وردی پہننا لازمی ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں۔ ان کے مطابق یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حجاب یا عبایا پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے اور طالبات وردی کے اوپر جو بھی پہننا چاہتے ہیں انہیں اس کی پوری آزادی حاصل ہے۔ گنڈ ہسی بٹ میں پرنسپل کی گرفتاری کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں آلوک کمار نے بتایا کہ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ پرنسپل کو اس طرح کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے معاملے کی فوری کارروائی عمل میں لا کر پرنسپل کو حراست میں لے لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دریا سنا ذرائع نے بتایا کہ محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار نے وشو بھارتی ہائر سیکنڈری اسکول راناواری کا دورہ کیا اور وہاں پر عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی۔ ذرائع نے کہا کہ دورے کے دوران پرنسپل سیکرٹری نے طالبات کی جانب سے احتجاج کرنے کا مسئلہ اٹھایا، جس دوران پرنسپل نے آلوک کمار کو بتایا کہ اسکول انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی آرڈر نہیں نکالا ہے۔ ادھر سری نگر کے ریناواری علاقے میں وشو بھارتی ہائر سیکنڈری اسکول کے متعدد طلباء نے کل جمعرات کو اسکول انتظامیہ کے خلاف مبینہ طور پر عبایا پہن کر احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ احتجاج کرنے والے طلباء میں سے ایک نے بتایا کہ انہیں اسکول کے پرنسپل کے حکم کے بعد عبایا پہن کر اسکول کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم 11th 12th کی گرلز ہیں
हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें एलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरसगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी हूँ यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब कि हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अबाया लोग करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं, हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं, वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते, यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमने सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन कर। तो हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी आप जब हमने प्रिंसिपल की बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोलिए मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? कि कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना, नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में कांग्रेस के साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने अबाया के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया जाता है। ऐसे में ये वो नहीं है, कर्नाटका नहीं, ये कर्नाटका नहीं है। किससे निकाला उस टीचर को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये तरीका है, ये आसाम नहीं है, ये कर्नाटका नहीं है। यहाँ लोगों का अपना इतिहास, पर्दादारी है, हया है। उस हया को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि आप आग से खेल रहे हो ऐसे तमाशे करके। ये तमाशे जो हैं आपको बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो जिस खामोशी से लोगों ने अपना हक छीनते हुए देखा, रियासत को जाते हुए देखा, 370 को जाते हुए देखा, एक ऐसा इनकलाब ना आए जिसमें आप बह जाओ। आप बहुत ज्यादती कर रहे हो, अब तो आप मजहब पे भी आ गए। इससे ज्यादा शेर JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाबनगरी कांगान में अपने 127वें अनाल उर्स पर हज़रत मेन नमज़ानुद्दीन क्यानवी नक्शबंदी की मज़ार पर हाज़िरी दी और गुलहाए अक़ीदत पेश किए। उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, मियां अल्ताफ़ अहमद साहब लारवी और मुशीर मुश्ताक गौरव भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सन 2024 के इंतखाबात में BJP का मुकाबला करने के लिए इलाकाई पार्टियों का साथ आना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने सन 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इलाकाई पार्टियों के साथ आने पर जोर देते हुए बुध को कहा कि मज़हब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स और दी केरला स्टोरी जैसी फ़िल्मों की मजम्मत करते हुए कहा कि वो लोगों को तकसीम करके हिंदुस्तान और उसके आइन को तबाह कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवगौड़ा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि हिंदुस्तान के तनों को बचाया जाना चाहिए। तीसरे महाज की ज़रूरत से मुताल्लिक़ इस सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि सबको मेरा पैगाम है कि हिंदुस्तान में तनों में इत्तेहाद है, हमें तनों की हिफाजत करनी है, इससे मुल्क की यकजहती की हिफाजत होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या सन 2024 के इंतखाबात में BJP का मुकाबला करने के लिए इलाकाई पार्टियों का एक साथ आना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि सवाल BJP का नहीं बल्कि मुल्क का है। क्या आप मुल्क को मज़हब की बुनियादों पर बटा हुआ देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मुल्क मुत्तहिद हो? ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने आज ज़िले के नौजवानों के लिए एज़ाज़ी तकरीब का इनेकाद किया था, जिसमें ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को एज़ाज़ से नवाजा गया। ज़िले पुलवामा के बच्चों ने मुख्तलिफ़ खेल सरगर्मियों के साथ साथ तालीम और दीगर शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। ये तकरीब उनके एज़ाज़ में रखी गई थी। तकरीब में 50 के करीब ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने इस मौके पर बच्चों को एज़ाज़ से नवाजा। बात करते हुए कहा कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर
का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह की तकरीब के इनेकाद से नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने कहा कि आज इन बच्चों को नवाजा गया जिन्होंने महकमे शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें ज़िले के 50 के करीब बच्चों ने शिरकत की। एप्रिसिएशन के लिए बुलाया गया था बाय डीसी और हमें एप्रिसिएशन की यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ बुलाया और हमें यहाँ एक मतलब एप्रिसिएशन की कि आप यहाँ मतलब आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा रहे हो, हमारी यूथ इतना कुछ कर रही है। आज हम सबको पता है कि यूथ कितने ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कितनी मतलब बुराई है सोसाइटी में, लेकिन अगर एक इंसान खुद को किसी चीज़ में इंडल्ज करे, ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स कोई भी एक्टिविटी हो, तो वो मतलब इन सोसाइटी के बुराइयों से दूर रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने अचीवर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स या बाकी यूथ हैं जिन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम्स में का एजाज़ हासिल किए हैं, अवार्ड्स मिले थे उनको, और उन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वर्क के, कुछ लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे बॉक्सिंग में और बाकी भी आर्ट में, बाकी चीज़ों में। तो उन्हीं का रिकॉग्निशन और एक उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट में आज फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी थी और उसमें 50 के करीब ऐसे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अवार्ड्स जीते हैं, उन्हीं के लिए फेलिसिटेशन थी। वादी कश्मीर में मई के पहले हफ्ते से ही चेरी का सीज़न शुरू होता है और ये तकरीबन जून के आखिरी हफ्ते तक जारी रहता है। ताहम इस साल अप्रैल से ही लगातार बारिशों और मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से वादी कश्मीर के साथ साथ बारामूला ज़िले के मल्ला बांगल हाजीबल में भी इन फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस ज़िम्न में सियासी कारकुन जहांगीर अहमद ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार चेरी से वाबस्ता इन अफराद की मदद करे। इस ज़िम्न में जब मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने महकमे हार्टिकल्चर के अफसर शकील अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि इमसाल की बात करें तो मौसम में उतार चढ़ाव और लगातार बारिशों की वजह से इस फसल से वाबस्ता किसान और बाग मालिकान को परेशानी हुई है, लेकिन हमने इलाके में अपनी टीम मुंतकिल की है और इन्होंने नुकसान का जायज़ा लिया है और जिन किसानों को नुकसान हुआ है सरकार उनकी ज़रूर मदद करेगी। पूरा आता है, मुला बांगल आता है, नमलनार, 5-6 गांव इसके साथ जुड़े हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी जो है क्रूरा और वगुरा आता है। आप जो है चिरी की वैली देख रहे हो यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हो जो भी नुकसान हुआ है इस साल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन फार्मर्स के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जैसे आते हैं वो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर इस साल जो नुकसान हुआ है हम चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंट यहाँ पर एक बार फिर से इंस्पेक्शन करके इन फार्मर्स की तरफ ध्यान दे ताकि जो भी नुकसान हुआ है कि उनका उस चीज़ का मुआवजा दे। हमें तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है। हमारा जो एरिया है पूरे बारामूला में है ये है 288 हेक्टेयर और 3800 मीट्रिक टन जो है हमारा प्रोडक्शन निकलता है। और हमारा टंगमरग एरिया जो है ये मेनली हमारा एरिया है जहाँ हमारा चेरी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और एरिया भी हमारा अच्छा खासा है वो। अब चूँकि ये सालाबारी होगी, हमारा फ्रूट जो है ये चेरी ये बड़ा वल्नरेबल फ्रूट है, बड़ा नाजुक फ्रूट है, डेलिकेट फ्रूट है। जो ही ज़्यादा बारिशें आती हैं या ओला गिरता है तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। चेरी में सबसे मसला जब ज़्यादा बारिश हुई, ये अभी 2 महीने लगातार बारिशें हुई, पहले ही इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि चेरी क्रैक हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब वाटर ज़्यादा करता है तो क्रैकिंग होती है, तो इससे भी वहाँ नुकसान हो गया। अब वो नुकसान निमटते ही फिर जब ओला गिर गया उससे भी थोड़ा नुकसान हो गया। हमने पूरा उस नुकसान का तखमीना लगाया है, हमने पूरे लिस्टें बनाए हैं कहाँ कितना परसेंटेज ऑफ डैमेज हुआ है। हमने महकमे बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने कायम किए जा रहे हाई डेंसिटी बागात का मुआयना किया। इस दौरे के दौरान उनके हमरा महकमे बागबानी के ज़िला अफसर रोशन दीन डार के अलावा महकमे बागबानी के दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने कहा कि ज़िले पुलवामा में इस साल 30 हेक्टेयर अराजी को हाई डेंसिटी बागात में तब्दील करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है, जिसमें तकरीबन 17 हेक्टेयर अराजी को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बाकी अराजी को भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर ने कहा कि सेब के साथ साथ दीगर मेवाजात के लिए भी जल्द ही हाई डेंसिटी पौधे फराहम किए जाएंगे। 30 हेक्टेयर्स का टारगेट था, तो अभी तक दे हैव अचीव्ड
अराउंड 17 हेक्टेयर्स कितने हो गए, 17 हेक्टेयर्स अचीव किए हैं अभी तक। 15 तारीख तक का इनका डेडलाइन है, तो दे एश्योर्ड में कि 15 तारीख तक इनका पूरा टारगेट जो है 30 हेक्टेयर्स का अचीव हो जाएगा। तो अभी तक खाली एप्पल की ही थी, तो अभी तक जो ये एजेंसीज़ जो है जिनके थ्रू ये प्लांटेशंस हो रही है, प्राइवेट एजेंसीज़ है, तो इनको चूँकि पता था यहाँ पे एप्पल की ही प्लांटेशन हो रही है, तो इन्होंने अभी तक एप्पल ही इंपोर्ट किया है। मगर मेरी रिसेंटली इनके साथ मीटिंग हुई, तो जैसे ही हमारी स्कीम लॉन्च हो गई नई, उन्होंने बाकी फ्रूट क्रॉप्स की तरफ अब जोर दिया है। तो कुछ प्राइवेट एंटरप्राइज है जिनके पास हाई डेंसिटी ये वालनट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी फ्रूट क्रॉप्स के टारगेट्स हम उनको दे रहे हैं, चाहे चेरी हो चाहे आलमंड हो, उनके टारगेट्स हम उनको दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में आप देखेंगे बाकी फ्रूट क्रॉप्स की हाई। शोपियां ज़िले के सिद्धू इलाके के लोन मोहल्ला का एक कूचा कई बरसों से मकामी आबादी के लिए अज़ाब का बाइस बना हुआ है, क्योंकि ड्रेन का कोई इंतज़ाम न होने के बाइस ये कूचा बेशतर वक्त बारिशों और घरों से निकलने वाले गंदे पानी से भरा पड़ा रहता है। मकामी आबादी ने बताया कि ये कूचा लगभग 90 घरों के लिए मेन सड़क तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने बताया कि लोन मोहल्ला सिद्धू में आज तक रामनगरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस ने कोई नाली या ड्रेन नहीं बनाई, जिसके नतीजे में यहाँ घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी इसी कूचे में जमा रहता है। लोगों ने बताया कि हम गुज़श्ता 3 साल से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। साथ ही हमने इलाके के मुताल्लिका डीडीसी के पास एक दरख्वास्त भी पेश की, लेकिन आज तक कोई गौर नहीं किया गया। मैं आप गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और आपसे, यहाँ आपने हमारा हाल देखा कैसा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये नहीं चल सकते हैं, हमने उठाकर ये लाए हैं यहाँ पर। मेहरबानी करके हर मुलाजिम साहब को हम गुजारिश करते हैं, हमारे ये मांगे। बहुत साल से, मैं तकरीबन 60-70 साल का हूँ, मैंने ऐसा हाल देखा यहाँ पर। इधर हमारा कोई परेशान किसी असर नहीं किया। तो मैं डीसी साहब शोपियान से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी ये मांगे जो हैं ये पूरी करे। हमारे इस सेंटर के गांव में जो कोचा है, जो मेन रोड हॉस्पिटल टू सेंटर विलेज में आता है, वो खस्ता हाल है। इसकी हमें बहुत ज़रूरत है इसकी, जो ये ठीक करें। हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो दे। बाकी वसलाम। वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल में वसन 1 के रिहायशियों ने जुमा के रोज़ शिकायत की कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मकामी अफराद बकरवाल बस्ती वसन का कहना है कि नलके के पानी की मुनासिब मकदार न होने की वजह से उन्हें आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा था। इन लोगों का कहना है कि हम करीबी नालियों से गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं। गैर सेहत बख्श होने की वजह से इसका हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। हमें यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, क्योंकि हमें यहाँ से ये हमारी माँ बहनें जो ये 1-1.5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाती हैं, और विंटर्स में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जब बर्फ़ गिरती है उस टाइम भी हमें ये पानी का। हम इससे पहले डीसी साहब के पास भी गए हैं, और ब्लॉक अफसर हमारे जो यहाँ पे बड़े बड़े अफसर हैं उनके पास हमने एप्लीकेशनें डाली हैं। उनके पास हम जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक कोई भी हल नहीं हुआ है। मेरी गुजारिश है डीसी गांदरबल से और LG मनोज सिन्हा साहब से कि हमारे इन मसलों पे हल किया। यात्रियों की आखिरी और सबसे बड़ी खेप सालाना मंडल यात्रा में शिरकत के लिए डोडा से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई। डोडा के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़्यादा यात्रियों के एक ग्रुप को वेद प्रकाश गुप्ता, चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल डोडा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सफ़र डाक बंगला डोडा से शुरू हुआ। ये यात्रा हर साल जून के महीने में शुरू होती है, जब डोडा के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग किश्तवाड़ ज़िले के पिदर की तरफ सफ़र शुरू करते हैं और पहाड़ी रास्तों को अबूर करने के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडल इलाके में दाखिल होते हैं। इस साल जुलूस में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, जो मजहबी नारों और तरानों के साथ शहर में मार्च करते थे। ज़िला इंतज़ामिया ने यात्रा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए थे। आज जो यात्रा डोडा शिव मंदिर से माँ मिंदला वाले की ओर प्रस्थान हर वर्ष की भांति 9 जून को डोडा शहर से माँ मिंदला वाली जो कि किश्तवाड़ से होते हुए सोल, गांधारी इत्यादि से होते हुए हिमाचल की ओर प्रस्थान करती है। ये यात्रा डोडा से
9 जून को निकलती है और 12 को वहाँ से वापस आती है। मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का और डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हर एक कार्यकर्ता की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये यात्रा सफलतापूर्वक डोडा से किश्तवाड़ और हिमाचल की ओर प्रस्थान कर चुकी है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। लद्दाख में कांपी ज़मीन, रिएक्टर पैमाने पर 4.3 दर्ज की गई ज़लज़ले की शिद्दत। जम्मू कश्मीर में हिजाब या अबाया पहनने पर कोई पाबंदी नहीं, जम्मू कश्मीर एजुकेशन महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का बयान। और सवाल बीजेपी का नहीं बल्कि मुल्क का है, फारूक अब्दुल्ला ने इलाकाई पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद पर दिया जोर। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।